Okay, let me explain this. It will be easier for them who have attended the personality class. We have talked about Sigmund Freud and Erikson, right? Both of them, what they had said, कि while bringing up a child, while parenting, listen to this. This is something very important. While parenting, in each stage, there will be a crisis. And from what time period this crisis starts, Aditi? From what time period? Unmute. Unmute. যখন মানে বাচ্চারা ব্রেস্ট ফিড করা বন্ধ করে Oral motor stage, breastfeeding, yes. Sucking. Main word is sucking. So বাচ্চাকে যখন weaning করা হয়, তার মানে দেখো একটা জিনিস অটিজম ফিল্ডের সঙ্গে মেলাও। When the child weaning starts, we have issues with autistic children. From liquid to semi-liquid is not the problem. The problem arises when from semi-liquid to solid, you have a problem. Okay. What kind of problem you have? What kind of problem? What is the transitory problem while feeding? Latching. Yes, Rupa, is that you? Yeah. What did you say? Like for me, the feeding, he was not latching properly. What is the word you use? I couldn't get it. Latching onto the breast. No. That is a different problem. I'm talking about autistic children. Latching problem is something else. Okay. Okay. From semi-liquid to solid. This is the problem autistic children face. Number one, they don't chew. They gulp. They don't chew the food. Number one. Secondly, their fixation towards particular food. All food they will not take. These are the issues. Clear? So, it is a crisis. It is a crisis. Why? Because either most of the parents of autistic children will not try to deal with it, or they find it very difficult to deal with it. They just stop doing the practice of feeding right. मतलब जैसे उनको डिफिकल्ट लगता है वो खाने को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो एक हद के बाद हम लोग वो जूझते नहीं है. We follow what the child is doing. That is a crisis. Now, what Erikson and Freud both had, kindly be mute if you're not participating. And one more thing, it's a kind request, please open up your video. Don't sit with videos off. You may be mute, but please open up your videos. Otherwise, it is very difficult for me. Okay? It's okay in whatever state you are. Thank you, Sharmila. Okay, Rupa. Now, what I'm trying to say is, what Freud said and Erikson said, again I'm saying, the prelim transitions are very important. So if a crisis occurs and it is not resolved, अगर वो crisis को हम resolve नहीं करते हैं, तो that actually disturbs a child's personality. मतलब नंबर वन, ओरोमोटर स्टेज. अगर आप ठीक से बच्चा खा नहीं रहा है, the child doesn't know how to ask,
they do the food grabbing. They don't know how much to eat. They cannot chew food. Okay. They cannot bring up the food in their mouth. They cannot mash up the food. Okay. All of this, the crisis, right? Now, if you consistently teach a child and he learns, so you are overcoming the crisis. But if you don't, अगर आप नहीं करते हो और ये प्रॉब्लम रह जाता है, तो क्या ये प्रॉब्लम होता है या सॉल्व आउट होता है? आंसर मी. प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम. सो इसमें एक प्रॉब्लम, सपोज मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम है, बच्चे का फीडिंग इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग जमा खाते में रखते हैं. दूसरा प्रॉब्लम अदिति, दूसरा कौन सा स्टेज में प्रॉब्लम आता है बच्चों का? सोशलाइजेशन. ये छोड़ मिला एकदम तो ऊपर चलेगा, नीचे नीचे नीचे. छोटो बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल बेबी. व्हाट इज द सेकंड स्टेज? potty training. Yes, टॉयलेट toilet ट्रेनिंग में कैसे toilet training. What we know as anal stage by Freud. Freud had talked about anal stage. Erikson also agreed with it. Both of them said, if you don't resolve the food issue and then the toilet training becomes an issue, both gets added. So crisis बढ़ रहा है ना कम रहा है? बढ़ रहा है crisis. देख लो अच्छे लगे तो ठीक है. And what happens? Third, what is the third thing they had talked about elaborately? Both of them, especially Freud. Yes, Aditi. Sexual stage. We ignore this sexual stimulation. Sexual stimulation is again a very big crisis in a childhood period, and then again the last stage. So what Freud and Erikson talked about very clearly कि अगर कोई भी स्टेज में कोई भी इशू रह जाता है, उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो वो दूसरे स्टेज के प्रॉब्लम में मिक्स हो जाता है. These are the 3 stages which I think every psychologist accept. And along with it, Piaget का अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं cognitive development, why they cannot overcome, especially children with autism, क्योंकि वो abstraction of thought, वो perspective develop नहीं करता है, जिसे हम बोलते हैं social skill. So for these 4 major issues, you have so much problem in a child with autism spectrum disorder. Now let me come to 2 things. Number 1, defense mechanism. Now, have you all heard about defense mechanism? Yeah. What it is? Like if you are in some stress or something, or you you will doing something else as a defensive mechanism. Like his autistic kids, usually they swing. Let's not talk about autism. Let's not talk about autism. Let's talk about human mind. Okay, we are talking about human mind. Like usual. Yeah. मुझे एक मच्छर काटेगा तो मैं बदले में चाटा मारती हूँ. That is a defense mechanism. We are right, they are wrong. No, ये I think मच्छर मारने में become डिफेंस मैकेनिज्म नहीं लगता है. क्यों बाइट कर रहा है?
नहीं नहीं। होगा, ओके ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स They चीज है. become introvert, they don't talk to people, and Okay, okay, Rupa, I got it. I got it. Now let's come to the basic fact. What happens, when you are a child, okay, when you are a child, I'm talking about normal situation now, forget about autism. Just let's not think about autism. When you are a child, if you face trauma, हमने सिगमंड फ्रॉइड में क्या पढ़ा कि हमारा जो इड है, हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो बहुत रॉ है, बहुत प्रिमिटिव है. वी हैव रेड इट, राइट? सो ये जो प्रिमिटिव डिजायर है, ये रॉ है. ये क्या हमेशा सही होता है? हमेशा क्या ये वाला सही होता है? उसको सही करने के लिए क्या चाहिए हमें? ईगो चाहिए, रियलिटी प्रिंसिपल चाहिए, राइट? सो रियलिटी प्रिंसिपल जहां पे काम नहीं कर रहा है, आपका ईगो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड में आप उसको पुश कर रहे हो, लाइक इट्स हर्टिंग यू. जो ट्रॉमा है वो आपको दुख दे रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, तो आप उस कष्ट को क्या करोगे? You will mechanize your mind so that it doesn't hurt you, right? So what do? You push it back. You try to forget. In most cases, actually you can, but it has its impact. तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, वो आपके जहन से जाता नहीं है. जहन का बंगाली वर्ड क्या होगा? जहन का बंगाली वर्ड बोलो कोई. মন তোমার মন মন থেকে থেকে যায় যায় না, না। তোমার মানসিক আনকনসিয়াস আই এম প্লাম্বলিং, সরি, তোমার আনকনসিয়াস মাইন্ডে ওটা থেকে যায় নরমালি. দেখবে তোমার এটা কিন্তু তোমরা নিজেদের চাইল্ডহুডটা দেখো, যদি মা কখনো মারে বা বাবা কখনো মারে, বিশেষ করে মেয়েদের বাবা মারলে তো মানে অভিমানের চূড়ান্ত. মা হয়তো চপ্পল দিয়ে পিটিয়ে যাচ্ছে, অত গায়ে লাগবে না. বাবা যদি কিছু বলেছে, সেটা সারা জীবন আমরা মনে রাখবো. তো ওটা হয় আর কি. তো তার মানে কি, তোমার আনকনসিয়াস মাইন্ডে কিন্তু ওই ট্রমাটা থেকে যায়. সাধারণত ছোট ছোট ট্রমাটাকে আমরা নিউট্রালাইজ করে দিই. এই যে নিউট্রালাইজ করা, এই যে মেকানিজম, এটাকে ডিফেন্স মেকানিজম বলে. But in many cases, there are at least 32 kinds of defense mechanism mind can go. যার মধ্যে regression, repression, denial, এগুলো displacement is very impactful. ঠিক আছে? সো আমি অত ডিটেলসে যাব না. ডিফেন্স মেকানিজমটা কিরকম হয়, কত রকমের হয়, ছোট ছোট এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি, তাহলে তারপরে তোমরা বুঝবে যে অটিজমের সঙ্গে এটা কোথায় রিলেটেড. ওকে, ডান. একটা দেখবে, I don't know you have come across this or not, sometimes some girls they baby talk. দেখেছো কখনো কোনো মেয়েকে বাচ্চাদের মতন কথা বলতে? খুব আদো আদো করে বাচ্চাদের মতন কথা বলে. They really behave like a baby. Have you ever seen? grown देखा है? ups. Yes. नहीं, ন্যাকামি बंगालीতে বলে না ন্যাকামি, it's not that. They really behave like a baby and they actually go back to their childhood. Have you seen such cases? No. Yeah, close person of mine. Who said what? Kindly, so my earnest request, please open up your video. It's my request to all of you. Otherwise, it looks very odd that I'm looking at a black screen. It's my request. All are my children. Open up your video. No issues. Nobody's going to judge you. So, what happens there is, Chayantani say, video call. একদম বলছি এরকম করে ভিডিও খোলো. তোমার what happens is, girls
who have a severe trauma of abuse. Severe trauma of abuse from family member, not an outsider. From a family member, because in India, you people, I don't know, you know about the same sex or not, most of the abuse happens from family member. Right. That girl go backs to her childhood time, because that was a protective time where she was protected by the parents. Because a small child is more protected, right? Her needs are taken care of. So Yeah. mentally, actually, she goes back to that era, that time period. And it is really a problem. So what happened over here? You call it regression. It's a regression. Have you all heard this word? Yes. Is that a coping mechanism, Didi? Going back to the childhood? No, that is regression. It is not coping mechanism. It goes back in the mind. It is defense mechanism, not coping. Coping is Acha, something else. okay. They couldn't cope. So brain mechanism protected the sanity of the human. So वो पीछे चला गया. तो ये regression हमारे बच्चों में भी होता है. हमारे बच्चों में रीजन होता है hormonal changes and of course family abuse. जहां पे बच्चों को बात बात पे डांटा जाता है, मारा जाता है, वहां पे बच्चे शटडाउन में चले जाते हैं एंड रिग्रेशन दिखाई देता है ज्यादा. लेकिन अगर समझो पेरेंट्स बहुत पेशेंस एंड प्यार से बच्चे को हैंडल करते हैं तो डेवलपमेंट डबल होता है. इट्स अ फैक्ट. तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा काम करता है. देखना कभी कभी कोई काम दिया, काम लेके कहीं और देख रहे हैं. They're just looking somewhere else. They are just not coming back to the work. That is called zoning. And zoning is a permanent problem. अगर ये zoning करना शुरू कर देना हमारे बच्चे तो काम कराना मुश्किल हो जाएगा. और ये zoning भी आपका एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है. मतलब इट्स अ मेंटल शटडाउन. इट हैज नथिंग टू डू विद अ डेलिबरेट मूव. ये ऑटोमेटिक ब्रेन शटडाउन हो जाता है. यस प्रियंका. सो मैम, मैंने आपको बताया था ना अभिनव का बहुत सीवियर जोनिंग. मुझे ऐसा लगता था मैंने आपको बताया भी था, रीजन दिया था. उसका जोनिंग खत्म हो गया, पता नहीं कैसे. क्योंकि आप उसके पीछे काम करते हो. अब जो करते हो वो जरूरी था. चॉइसेस दिए वो सबसे. Of course, you people don't think about PECs. PECs is so very important. PECs लेकर, communication system लेकर, बंगाल में तो कोई सोचता नहीं है. Bengalis are far away from doing these structure and ये. Elsewhere it is happening. बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा. आप लोग अक्सर देखो ना कितने बच्चे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. बंगाल से मुझे दिखाओ तो कौन इंप्रूव कर रहा है. बाय द वे एक गुड न्यूज है. Can I celebrate with you people? प्लीज डू. राहुल को मल्टीमीडिया में नौकरी मिल गया है और उसको 6 months ट्रेनिंग के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा. And I'm so thankful to God कि जो उसका नैक था उसी में उसको काम मिला. वेरी गुड न्यूज मैम. कांग्रेचुलेशंस टू यू. And I'm still in that days. I'm zoning now. That was immense. I'll get emotional. Let's come back to defense mechanism. So what I'm trying to tell you, ये जो aggression हमारे बच्चे दिखाते हैं ना, ये जो आप लोग बार बार बोलते हो ना मैम हमको पिंच कर रहा है, ये कर रहा है, in a way their brain is not able to process it. So कहीं पे वो आप ही लोगों से सीखता है. प्लीज, ये बाहर से नहीं सीखते हैं बच्चे, माँ बाप से ही सीखते हैं. क्योंकि जब वो छोटे होते हैं ना, थोड़ा सा हम ऐसे करके लगा देते हैं. वो जो ऐसे करके लगा दिया वो उनके दिमाग में एकदम पूरा छवि हो गया. एंड दे यूज इट. ओके. दूसरा है रिप्रेशन. रिप्रेशन क्या होता है?
yes Rupa. So how to stop this zoning, ma'am? Like looking at or like on to the fan and stuff. First Zoning out. understand these steps, then I'll tell the solution also. Don't worry, today I'll tell the solution also. First learn the steps. Okay, regression बोला, regression सबको समझ में आया? regression समझ में आया नहीं कि मैं फिर से समझाऊं? Anybody who wants to understand again? Ma'am, Sanjana, once again. मैम और एक बार बोलून प्लीज. Okay, अच्छा. Because ma'am, my child saw regression every 3 months or 6 months. Whatever I teach, he started speaking, then he start regressing. Yes, regression होता है. It's a brain mechanism. Okay, एक चीज जो उनको बहुत डिस्टर्ब करता है, लाइक जैसे हम जोर जबरदस्ती काम कराते हैं, हाथ पकड़ के लिखाते जाओ लिखाते जाओ लिखाते जाओ, इसके बाद तुम दो, इधर वो पेपर फाड़ेगा नहीं तो पेन पेंसिल उठा के फेंक देगा. इसका मतलब ही रिग्रेशन होता है. मतलब उसके ब्रेन में ये समझ लिया कि मम्मी तो ऐसे नहीं मानेगी, मैं ऐसे करूंगा तो जरूर मानेगी. तो ये जो रोते हैं ये लोग, ये जो मेल्ट डाउन होता है, इट इज जेन्युइन प्रॉब्लम. इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन होता है कि एक जगह ये जोनिंग होता है इन अ काइंड ऑफ अ रिप्रेशन. ठीक है, थ्रोइंग इज रिग्रेशन से आता है, और जोनिंग जो होता है लाइक मैं अपना माइंड कहीं और लेकर चला गया. इसका मतलब वो तो आपको बोल के नहीं समझा पा रहा है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आई डोंट वांट टू डू इट. सो क्या कर रहा है? अपने आप को एकदम अलग उसमें लेके चला गया. उसको वो उस चीज से वो कनेक्ट ही नहीं है, और उस वक्त आप कुछ भी बोलो उनके दिमाग में जाना ही नहीं है. इट विल नॉट गो टू देयर. वैसे ही ऑडिटरी इंटीग्रेशन इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा. डिनाइल, डिनाइल जो है ये पेरेंट्स में ज्यादा होता है. डिनाइल मतलब रिफ्यूज नहीं होता है. डिनाइल मीन्स नॉट एक्सेप्टिंग. एक्सेप्टेंस इश्यू, लाइक मानना ही नहीं है. ये होता है कि नहीं होता है पेरेंट्स में? एंड इट इज नॉट अ फ्लूक, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. और अगर इसमें रह गए, डिनाइल में रह गए, आप अगर इसको मैकेनाइज नहीं कर पाओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स स्पेशली मदर्स गो इनटू डिप्रेशन बिकॉज उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होता है. नाउ दिस एक्सेप्टेंस डजंट मीन लाइक यू आर. अच्छा, जैसे बहुत जन मुझे बोलते हैं मेरे बच्चे को मैं मॉडरेट ऑटिज्म है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नथिंग. अगर ऑटिज्म है, चाहे वो माइल्ड हो, सिवियर हो, जो भी हो, इट इज ऑटिज्म. ऑटिज्म में 3 चीजें देखी जाती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1 क्या है पता है आप लोगों को? लेवल 1 सुना है? लेवल इंडिया में तो चर्चा ही नहीं होता है. अच्छा, लेवल 1 है जहां पे नियर टू इंडिपेंडेंट लाइफ एक पर्सन लीड कर सकता है विद विजुअल ग्रेटिफिकेशन. दैट इज लेवल 1. उसको उस कैटेगरी को हम लोग माइल्ड बोल सकते हैं. दैट इज माइल्ड एक्चुअली, द लेवल 1. लेवल 2, those who need little bit more assistance. Level 3 is complete infrastructure severity. ठीक है, इस हिसाब से माइल्ड मॉडरेट पकड़ा जाता है. लेकिन अगर माइल्ड हो या मॉडरेट हो या सिवियर हो, ऑटिज्म अगर है तो वो ऑटिज्म है. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज सिवियर ऑटिज्म को बहुत जन लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ मिक्सअप कर देते हैं, क्योंकि दोनों में ही थोड़ा वर्बलिटी का इश्यू होता है. ठीक है, so people mix up with learning disability and severe autism. है, ये अलग मसला है. इसमें हालांकि शशांगी ने एक सवाल किया, उसमें मैं आती हूँ. पहले डिफेंस मैकेनिज्म को हम थोड़ा क्लियर करते हैं. एक आर्टिकल पढ़ सकते हो, मैंने एक आर्टिकल निकाल के रखा है, आप लोग उसको सेव कर लो. आप लोग को बहुत इजी होगा समझने. अच्छा, ये नहीं है, वेट, हो सके तो
सिगमंड फ्रॉइड का पर्सनालिटी ये वाला भी पढ़ लेना आप लोग. वेट, आई हैव टू रीशेयर इट. दिख रहा है आप सबको? कैन यू ऑल सी? कैन यू ऑल सी दिस? अरे कोई यस नो तो बोलो. Yes, yes. Yes, yes. ओके. अच्छा, जो डिफेंस मैकेनिज्म है पहले की जो है, जो प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, वो फ्रॉइड के दिए हैं. लेटर ऑन उनकी बेटी बहुत सारा ऐड करती है. ओके, एना वाज हर नेम. तो वो ऐड करती हैं. इट्स अराउंड 32. तो सिगमंड फ्रॉइड उनका कहना ही था कि ये वेरी वेल माइंड का है. देखना, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ो. तो कौन मुझसे पूछ रहा था? प्रियंका पूछ रहे थे ना. रीड दिस आर्टिकल. वेरी वेल माइंड में बहुत सारा है. साइकोलॉजी टुडे इज एक्सपेंसिव. वो लोग मंथली 1000 रुपीज लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता है. वेरी वेल में पढ़ सकते हो. एक और साइट है, मैं बाद में बताऊंगी. और ऑटिज्म के लिए भी एक बहुत अच्छा साइट है. मुझे थोड़ा ट्यूसडे ऐसा मेरे को थोड़ा रिमाइंड करना. आई विल गिव यू द साइट. पढ़ना, उसको पढ़ने से आप लोगों को बहुत समझ में आएगा. बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा है. सो डिफेंस मैकेनिज्म बाद में एना भी उसमें ज्वाइन करती है. देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज है जो ऑटिज्म के साथ बहुत रिलेटेड है. इसको समझो. ये मैं थोड़ा बंद करके बोलती हूँ, नहीं तो माइंड आप लोग का यहीं पे रहेगा. मैं फिर से रीशेयर करूंगी. डिस्प्लेसमेंट इज वेरी ऑटिस्टिक काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. आप लोग बोलेंगे क्यों? क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे अक्सर स्कूल में बच्चे क्यों मारते हैं? Why they pinch, they scratch, they bite in school more than home? First is attention, फिर दूसरा कि they are not No. able to express No. properly. No. ঘরে মার খায় Yes, Sharbila? ঘরে মার খায় Exactly. घर में what? माँ को टेंशन है, टिफिन पैक करना है, ऑफिस में खाना देना है, खुद का है, बच्चे को तैयार करना है, बच्चा उठ नहीं रहा है, तो 2-3 लगा देते हैं माँ लोग तैयार करने के लिए. ठीक है, क्योंकि उसको तो टाइम मेंटेन करके इसको स्कूल भेजना है. स्कूल नहीं भेजेगी तो उसका तो बैंड बजेगा, उसको तो अपना भी टेंशन है. ये जो हड़बड़ी में बच्चे को उठाते हैं हम लोग, और हमेशा क्या करते हैं, ये नॉर्मली इंडियन पेरेंट्स करते हैं, बच्चे को लास्ट में उठाते हैं. और हमारे बच्चे तब भी नींद में ही स्कूल जाते हैं. तो स्कूल में जाके शायद उनका नींद खुलता है, और जो घर में हुआ है वो जाके पास वाले बच्चे को या टीचर को पढ़ता है. एकदम गॉट इट? ये नहीं बेसिकली कि स्कूल में जाके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं. ये जो भड़ास निकालना है इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. एंड इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. दूसरा, माँ के साथ इधर बहुत आक्रोश दिखाएंगे या बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि माँ डर का फैक्टर हो जाता है या फादर डर का फैक्टर हो जाता है. ठीक है ना? आप लोग खुद ही देखो ना, पापा का गुस्सा हम लोग किस पर निकालते थे? माँ पर ही निकालते थे. डिस्प्लेसमेंट. और पापा ऑफिस का गुस्सा आके माँ पर निकालती थी, वो भी डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि बॉस को तो गाली नहीं निकाल सकता है ना कोई, नौकरी चला जाए. तो हमारा ये आदत ही है, ह्यूमन माइंड है, कि हमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें जो गुस्सा होता है, वो हम अपने वीकर सेक्शन पर निकालते हैं, अपने हम उम्र के. इसलिए देखना, ऑटिस्टिक बच्चे पीयर ग्रुप में मिक्स नहीं करते हैं. वो बड़ों के साथ इजी है और छोटों पर अपना धौंस जमाते हैं. छोटों को जाके धक्का मारेंगे, छोटों को जाके एक घूसा मार देंगे. अपने अपने हाइट और फाइट के ऑटिस्टिक बच्चे उनके पास ही नहीं जाते हैं. देखा है किसी ने? हैव यू सीन दैट? दे आर मोर हाँ, नहीं जाते, कंफर्टेबल छोटों के विद पास जाते एल्डर. हैं. हाँ, ये बहुत है. डिनाइल मैंने कहा, रिप्रेशन,
रिप्रेशन में क्या होता है, ये ऑटिस्टिक बच्चे रिप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते, ओनली इफ you know you force the child to work something, they will not be connected. You can never force a child on autism spectrum. ठीक है, सप्रेशन में नहीं जाऊंगी, बाकी सब हाई फंक्शनिंग है, वो हमारे इसके लिए नहीं है. तो गो थ्रू दिस थिंग. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अरे कोई सवाल है तो पूछो. একটু এইসব প্যারেন্টসদেরকে ডিল করি কি করে? বাচ্চাকে না ডিল করে নেবো, কিন্তু প্যারেন্টস গুলোকে কি করে ডিল করবো? I understand that. Okay, डिफेंस मैकेनिज्म समझ लिया सबने. सोल्यूशन क्या है उस पे अब आते हैं. सोल्यूशन के लिए I will now I have to talk about regression. So defense mechanism